how are you all? Fine? So, let's start our chapter number 4. And what is the name of chapter number 4? The name is Parts and Wholes. Parts means हम कोई भी things का ऐसे parts में divide करते हैं, right? That is called parts. And whole means वो full चीज, full thing, understand? So, in this chapter, we are going to learn parts and होल. मतलब कि एक पूरी थिंग्स के कितने पार्ट्स है तो उसका पोर्शन कितना है, राइट? और कितने पोर्शन मिला के एक फुल पार्ट बनता है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्रैक्शन. डू यू रिमेम्बर द फ्रैक्शन वी हैव लर्न इन 4th स्टैंडर्ड ऑल्सो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सी व्हाट इज रिटन. आवर फ्लैग. यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री. हम सबने हमारी कंट्री का फ्लैग तो देखा ही है, राइट? दिस इज द नेशनल फ्लैग. डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग? क्या आपको आता है ये फ्लैग ड्रॉ करना? इट इज वेरी इजी, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू? ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विथ 6 सेंटीमीटर. फिर आपको क्या करना है? 9/6 का एक रेक्टेंगल बनाना है एंड डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. और वो जो रेक्टेंगल है उसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड कंप्लीट द फ्लैग. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कंप्लीट द फ्लैग. सो वी ऑल नो एट द टॉप ऑफ द फ्लैग विच कलर इज गिवन? ऑरेंज. एंड इन द मिडल व्हाइट. एंड हियर एट द बॉटम विच कलर इज गिवन? ग्रीन कलर, राइट? सो द टॉप 1/3 of our flag is saffron, or we can say orange. Means now can you understand? Parts. So how many total parts of the flags are given? See 1, 2 and 3. 3 different parts can you see? And equal. All the colors are dividing equally this flag. Understand? जितना portion ये saffron का है उतना ही white का है और उतना ही green का है. So we can say what is the part of this orange color? It is 1/3 because total कितने parts हुए? 1, 2, 3. Total 3 parts and 3 में से orange कितना है? 1. So it is 1/3. And white color's portion is also 1/3 means only one part from how many? 3. And orange is the same as this 1/3 we can say. One part from how many? 3. Understand? So what is the color of middle 1/3 of the flag? What is the color? White color. And where will you draw the Ashoka Chakra? And Ashoka Chakra will be in the middle in white color portion, right? And now see how much of the flag will you color green? Green color कितना करोगे आप? In one portion means 3 में से 1 में करेंगे, right? Is the white color now less than 1/3 of the flag? And why? अब यहाँ पे एक जो question दिया हुआ है, is the white color now less than 1/3 of the flag? And why? So can you think that why white color is less than 1/3? There is a reason, right? So let's learn about reason. So in your notebook also you have to complete this heading and then chapter's name you have to write. Then what was the question first? Do you know how to draw the flag? And then what answer can you write? Yes, I know how to draw the flag. Then draw the flag. Here you have to draw 9 centimeter and this side you have to draw of 6 centimeter, right? Then fill orange color, white color and green color in this and then draw Ashoka Chakra in the middle. And after that what will you write? 1/3 of the flag is green. It is also we have already learned. See total 3 parts are there and 1 part is green. So we can say 1/3. And 1/3 of the flag is white with Ashoka Chakra. And here also 1/3 is white with Ashoka Chakra. But see the question, जो question था ना यही उसका answer है. Blue Ashoka Chakra. But white color is little less because of blue Ashoka Chakra. समझ में आया? Here blue color is given because of Ashoka Chakra. तो इसका पोर्शन जो व्हाइट का है वो थोड़ा इन दोनों से लेस हो जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है? एंड 1/3 ऑफ द फ्लैग इज ग्रीन. तो वो तो हमने पहले ही कर दिया. 1/3 ऑफ द फ्लैग इज ग्रीन and 1/3 of the flag is white with blue Ashoka Chakra.
but white color is little less because of blue Ashoka Chakra. Understand? ये समझ में आया कि white color का जो portion है वो 1/3 से थोड़ा less है. So this is your answer. You have to write this in your notebook. Understand? Now let's see in your textbook which is next. Now see. Now look at this flag. See this flag. This flag is of Afghanistan. See the flag of Afghanistan. So how much of it is black? So here also we can see 3 color, black, red and green. And how many parts are there? Same, 3 parts. But colors are different, black, red and green. So here what is the question? How much of it's green? How much of it's black? So total how many parts are there? 3. And from 3 parts, how many black? Only 1. So we can write 1/3 flag is black. Understand? Now the next. The green part of the flag can be written as, now see green part. So green part is also same as black. Total 3 parts and 1 part is colored. So we have to write 1/3. Right? You can write like this also, and in word we can write 1/3. Now see, is red less than 1/3 the flag and why? अब यहाँ पे भी ऐसे ही पूछ रहे हैं. अफगानिस्तान में यहाँ पे रेड कलर है, बट क्या रेड कलर है वो इन दोनों से 1/3 से क्या लेस है? अगर है then why? So this answers I have written in notebook. See like this. First of all, what you have to do, write like this, the flag of Afghanistan. Then the first question was, how much of it's black? Black कितना था? 1/3 of the flag is black, right? This is the first question. Now second one is what? The green part of the flag can be written as 1/3. So this was second question. That is already I explained you. Now let's talk about third one. Is red less than 1/3 of the flag and why? So is it yes? Because why? It is less. Yes, the red part is little less than 1/3 of the flag. This is because of white emblem in the red portion. So can you see the emblem? मतलब कि उसका जो ये नेशन का जो चिन्ह होता है, राइट? तो ये व्हाइट कलर का इसमें दिया हुआ है. So obviously the portion of red color is little less than 1/3. 1/3 से थोड़ा कम होगा. समझ में आ रहा है? Now see the next flag here in your book. Which flag is given? See here. This is the flag of Myanmar, our neighbor. So Myanmar is also a country, but here it is written our neighbor, मतलब हमारा पड़ोसी देश. Is blue more than 1/4 of the flag or less? अब अगर हम कोई flag के 3 parts करते हैं, so we can say 1/3. But here we have to divide this flag equally, like this way. See, I am dividing this way. So if you will see the first, then you can tell the answer. Yes, the blue is 1/4 of the flag. But here only blue is given like this. No, here also we can see one picture emblem, right? So is blue more than 1/4 of the flag or less? Blue है वो more है कि less है? 1/4 मतलब देखो हमने एक फुल ये होल एक फ्लैग था, उसके हमने कितने पार्ट्स किए? 4. 1 2 3 4. तो दिस पार्ट इज ऑल्सो वी कैन से 1/4. दिस इज ऑल्सो 1/4. दिस इज ऑल्सो 1/4. एंड दिस इज ऑल्सो दिस पार्ट वी कैन से 1/4. But we are talking about color portion. So only blue color is given? No. There is a picture. Emblem is also given. So we can say this is less than 1/4. But we have to write it in notebook like this. See, first of all you have to write the heading, the flag of Myanmar, right? Then you can write question also. Is blue more than 1/4 of the flag or less? So as we have discussed before, the blue color is little less than 1/4 of the flag. Why? क्यों? This is because of the white emblem in the blue portion. जो हमने अभी flag में देखा, उसमें एक portion में कुछ picture था ना, तो उसकी वो नेशनल चिन्ह है वो, राइट?
तो इसीलिए उसमें दिया हुआ है, तो दैट इज लिटिल लेस देन 1/4 बिकॉज हमने यहाँ पे 1/4 क्यों यूज किया? वी हैव divided into 4 equal parts. That's why each of part is called 1/4. Right? अगर हमने 3 parts में divide किया होता so we can say 1/3. But here we have divided into 4 equal parts. So this can be 1/4. Each part we can say 1/4. Understand? Now guess how much of the flag is red? Is it more than half? Is it more than 3/4? अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये 3 पोर्शन में रेड कलर है, मतलब कि ये हाफ से ज्यादा है। हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम इतना करें, ये 1/4 एंड ये 1/4, तो यही हाफ हो गया। ये तो हाफ से भी ज्यादा है, मतलब कि कितने पार्ट से, टोटल कितने पार्ट है? 4, राइट। उसमें से कितने रेड है? 1, 2 एंड 3 आर रेड। सो वी कैन से 3/4 पार्ट। इट इज नॉट मोर देन 3/4 बट इट इज more than half, we can say. Understand? But here also we can see some portion of red. So this is 3/4 and more than 3/4, right? So how to write in the notebook? Like this way. Yes, it is more than half. जैसे मैंने अभी आपको बोला, because 3 parts are given of the flag. It is also more than 3/4 and ये 3/4 से भी ज्यादा है, because in the last part red color is also given but little bit, थोड़ा सा दिया हुआ है, so that we have written like this. So this question answers you have to write in your notebook also, and here also you have to fill the blank. Understand? This way you have to do. Now let's do the next page. Now find out. Here you have to find out something. What? Collect as many flags as you can. Means आपको जितने भी फ्लैग्स मिले उतने कलेक्ट करो। यू कैन सर्च इन गूगल, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो बहुत सारे फ्लैग्स, या आप स्टिकर्स भी परचेज कर सकते हो। ऑलरेडी मार्केट में उसके चार्ट मिलते हैं, राइट? सो दैट यू कैन परचेज एंड स्टिक इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में स्टिक भी कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ कंट्री। आप क्या करो, जैसे यहाँ पे अफगानिस्तान, म्यांमार का फ्लैग हमने देखा ना, वैसे और अलग अलग कंट्री के फ्लैग को आप ड्रॉ भी कर सकते हो। It's okay if you cannot purchase the chart, you can draw at least 5 flags you can draw in your notebook. Now how many flags have 3 colors? After that what you have to see कि कितने flag में ऐसे हमारे flag की तरह 3 colors है। Are all colored parts equal in this flag? And फिर जो colors है वो क्या उसमें equal है, वो भी आप देखो। This is the flag of math club. Now see, this is the flag of math club in a school in Kerala. So there is a club and the name is math club in the Kerala. So what part of the flag is colored red? So here we can say here also red, here also red, right? So what part? First of all we have to count total parts. 1, 2, 3, 4, 5. Total 5 parts. And 5 में से कितने parts colored है? 1 and 2. So we can say 2/5 part, right, is of red. And what part is green? अब green color का कौन सा part है? Now we know total parts are 5 and green part is only 1. So we can write 1/5. Understand? Now here see this black logo. अब ये आपको black logo दिख रहा है? That you have to draw. अब try करो draw करने की, right? आपको पता है ये जो शेप है वो किस में से बना हुआ है? ये 3rd स्टैंडर्ड में 10 ग्राम की फिगर होती है, राइट? 10 ग्राम में से अलग अलग हम बहुत सारी नियर अबाउट 1600 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर शेप्स। इसी शेप्स को यूज करके बहुत सारी डिजाइन बना सकते हैं। ये 3rd स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, राइट? सो इज देयर अ मैथ क्लब इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में, मतलब कि क्या हमारे स्कूल में मैथ क्लब है? If not, ask your teacher how to set it up. अगर नहीं है, then you have to ask your teacher कि उसको कैसे सेट करे। Design a flag for your math club. और आपको क्या करना है, आपकी मैथ क्लब कैसा, मतलब कि ये तो केरला का फ्लैग है, राइट? उसकी मैथ क्लब स्कूल का हम थोड़ी ना ऐसा सेम रखेंगे। अगर हम हमारे स्कूल में मैथ क्लब बनाएंगे, then we will also make one flag. तो you have to suggest, आप मुझे सजेस्ट करो कि हमारा मैथ क्लब का जो
फ्लैग है वो हम कैसा रखेंगे. सो ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ. और जिसका भी अच्छा होगा ना, बहुत ही अच्छा, उसका हम डेफिनेटली मैथ क्लब में फ्लैग बनाएंगे. ओके, हमारे पास मैथ क्लब तो हमने नहीं बनाया है, बट हमारे पास मैथ लैब है, राइट. तो हम मैथ लैब का लोगो भी रख सकते हैं जो आप बनाओ, बट जिसका भी बहुत अच्छा होगा उसका हम रखेंगे फाइनल, राइट. सो मेक योर ओन लोगो ऑफ मैथ क्लब. सो and you have to click photo and send me. I want to see that how can you draw the flag of the math lab. Now have you used red color? फिर आप इसमें कलर भी करोगे, तो as per that you have to give answer कि आपने क्या रेड कलर यूज किया है. What part of flag did you color red? Then you have to write the part, that what part did you color red. तो ये तो सबका अलग अलग आएगा. जो भी फ्लैग ड्रॉ करेगा वो अलग कलर होगा. रेड उसमें अगर आप यूज करते हो, देन यू हैव टू राइट ओवर हियर व्हाट वर द अदर कलर्स यू चूज, एंड अदर कलर आपने कौन से चूज किए, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट. बट इट इज योर वर्क. आई कैन नॉट ड्रॉ. You have to draw, you have to decide, right? And then you have to fill the answer, understand? So you have to do this. It is compulsory. आपको इसमें draw करना ही पड़ेगा, but perfectly, right? ऐसे भी नहीं कि एक फ्लावर ड्रॉ कर दिया तो फ्लावर कोई मैथ क्लब का लोगो नहीं हो सकता. समझ में आया? So आप थिंक करो कि क्या हो सकता है. Now let's see the next. हाँ, बट अगर एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है तो वो आपको नोटबुक में लिखना है. So like this way. See, is there a math club in your school? If not, ask your teacher how to set it up. Design a flag for your math club and draw it here. So अभी तो हमारे पास नहीं है. That's why I have written no. There is no math club in my school. I have requested my teacher to help us in setting up a math club. So this way you can write your answer. Understand? I will send this PDF. You have to complete in notebook these exercises. Now let's see the next page. It is page number 52. Now here see in this page. What is this? Magic top. मतलब कि ये ऐसा वाला टॉप बनाना है. तो हम सब जब छोटे थे ना, तो ऐसा टॉप हमने प्लास्टिक का बहुत ही उससे प्ले किया था. आपको याद है? सबने ऐसा किया होगा. So here you are going to make this magic top. यहाँ पे क्या करना है? आपको वो टॉप बनाना है. See, let us make a magic top. इसमें क्या करना है? Take a cardboard piece. अगर आपके पास चार्ट पेपर है, then also it's okay. अगर आपके पास कोई पुरानी नोटबुक है, उसका कवर है जो थिक है, तो आप वो भी ले सकते हैं. And draw a circle of radius 3 सेंटीमीटर. फिर आप क्या करो? 3 सेंटीमीटर का कोई भी एक सर्कल बनाओ and cut it out. फिर उसको कट करो and divide the circle into 8 equal parts. And then you have to divide circle into 8 equal parts. Understand? So this way you can cut this circle. And what is this? Divide the circle into 8 equal parts. So how to divide? What you can do? Fold it. One time you can fold. Then this is 2 parts. So this way you have to make 8 parts, and these are equal 8 parts. But you don't use this type of paper. You use thick paper if you have. Understand? वरना आपका ये जो टॉप है ना, वो स्पिन नहीं करेगा, ऐसे घूमेगा नहीं. और अगर आप इसको फोल्ड करोगे, देन ऑल्सो ये स्पिनिंग नहीं करेगा. So what can you do? You have to use thick paper or thick cover or cardboard you can use, right? कोई भी रफ पड़ा हो, that you can use. It's not necessary that you have to purchase. It's okay, no problem. घर पे कुछ भी पड़ा हो जो थोड़ा सा थिक हो, उसको आप ले लो, तो आप स्पिन करोगे तो अच्छा मजा आएगा आपको, राइट? Now divide the circle into 8 equal parts. Now each part is 1/8 of the circle. So yes, see, हमने एक पूरे सर्कल को कितने पार्ट्स किए? 1 पार्ट. अगर आप इतना पार्ट देखोगे ना, so it is 1/8 because total 8 parts are there. If I will see this part, so this is also 1/8, this is also 1/8. मतलब कि ये सारे जो पार्ट्स है वो क्या हो गए? 1/8. Understand? Now see here. Now color 2, 8 red. Means 8 में से 2 को हमको red करना है, तो we will do red over here and we can do here also red. That is your choice. आपको कोई भी red करना है करो, but 2 parts red, right? Here you can do red color. Now 1/8 orange. So 1/8 means only 1 part. 8
में से वन पार्ट. सो हियर यू कैन डू ऑरेंज कलर. इसमें आप एक में यहाँ पे ऑरेंज कर दो एंड 1/8 येलो. एंड यहाँ पे अगर आपको 1/8 येलो करना है तो कोई भी एक पार्ट येलो का कर दो. उसके बाद एज शोन हियर पुश अ मैचस्टिक थ्रू द सेंटर. देखो जितने कलर्स किए थे वो हमने कर लिए, मतलब कि 4 में किए, 4 खाली रह गए. उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको क्या करना है, एक मैचस्टिक को आपको फिक्स करना है यहाँ पे उसके होल में, राइट. एंड सेंटर ऑफ द सर्कल का सेंटर कौन सा है, यही वाला है. तो आपको सेंटर में मैचस्टिक को पुश करना है. एंड देन सी योर मैजिक टॉप इज रेडी. स्पिन इट फास्ट. देन लुक एट दिस पिक्चर. ये पिक्चर में जैसे बॉय उसको स्पिन कर रहा है दैट वे. बट अगर आपने मैचस्टिक्स को थोड़ा सा भी इधर उधर फिक्स कर दिया ना तो भी आपका ये जो स्पिन है वो आपका ये टॉप है वो स्पिन नहीं करेगा. अंडरस्टैंड. सो यू हैव टू फिक्स इट प्रॉपरली एंड देन राइट व्हाट यू सी इन योर नोटबुक. आफ्टर दैट उसके बाद अगर आपका ये जो है टॉप बन जाए फिर आपको नोटबुक में लिखना है कि आपने क्या देखा. तो पहले तो हमने कलर 4 में ही किए हैं, बाकी सबको ऐसे ही रखा है, राइट. व्हाइट ही रखा है. तो आप जब भी उसको स्पिन करोगे ना तो आपको कुछ उसमें चेंज दिखाई देगा. तो दैट इज आई हैव रिटन इन नोटबुक. आपको क्या करना है, सी दिस इज ऑन पेज नंबर 52. सो यू कैन ऑल्सो मेंशन. आप एवरी टाइम पेज नंबर मेंशन करते जाओ. जो भी एक्टिविटी है उसका जो भी आंसर हम लिखते हैं ना तो आप उसको पेज नंबर मेंशन करो. तो आपको क्या होगा कि रिवीजन के टाइम या लिखते टाइम इजी रहेगा कि ये कौन से पेज नंबर पे है, 52 पे. सो डायरेक्टली आपको 52 पेज नंबर ओपन करना है, राइट. सो व्हाट डू यू सी एंड कैन यू सी ऑल द कलर्स, राइट. व्हाट यू सी इन योर नोटबुक, ये तो क्वेश्चन ही था. सो उसका आंसर है व्हेन द मैजिक टॉप इज स्पिनिंग वी कैन नॉट सी द कलर्स प्रॉपरली. जब वो मैजिक टॉप स्पिन करेगा ना तब हमको सारे कलर्स नहीं दिखेंगे. कैसे दिखेगा, सी हियर वी सी अ व्हाइट सर्कुलर टॉप स्पिनिंग. हमको क्या दिखेगा, ओनली व्हाइट सर्कुलर टॉप. सिर्फ उसका व्हाइट पोर्शन ही दिखेगा. अंडरस्टैंड, समझ में आया. तो अगर आप ये ट्राई करोगे तो ही आपको समझ में आएगा. सो दैट यू हैव टू ट्राई प्रॉपरली एट योर होम एंड स्पिन इट. और उसको स्पिन करो, राइट. एंड हियर सी सम प्रैक्टिस टाइम. सो व्हाट इज दिस, which picture is this? It's a chocolate bar. So here related to this chocolate some information is given. See, Manju had a chocolate. अब ये chocolate किसकी है, मंजू की है. She gave 1/4 of it to Raji. अब इसको 1/4 ये जो chocolate थी ना उसका 1/4 portion उसने किसको दे दिया, राजी को. And 1/3 of सुजाता एंड 1/6 टू शीला. मतलब कि उसने अपनी 3 फ्रेंड्स को चॉकलेट डिवाइड कर दी. देन शी एट द रिमेनिंग पार्ट और उसने बची हुई चॉकलेट खाई. देन हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट एंड राइट हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको ये डिवाइड करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, टोटल कितने पीसेस है. तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने पीसेस है, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 12. टोटल 12 पीसेस है. सो 12 पीसेस में से उसने 1/3 मतलब कि 12 पीसेस है उसका 1/3. सो दिस वे यू हैव टू डू कैलकुलेशन. सो हियर आई हैव डन कैलकुलेशन इन द नोटबुक. आपको क्या करना है, नोटबुक में ही ये काउंट करना है. सो सी इन नोटबुक केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए chocolate bar. Here also you have to write practice time is the heading and chocolate bar. So total number of pieces in chocolate अभी हमने काउंट किए कितने थे, 12. और राजी को कितना मिलने वाला था, 1/4. राजी गोट 1/4 ऑफ 12, राइट. मतलब कि 12 का 1/4. सो हाउ टू राइट दिस, 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4. अब यहाँ पे देखो ये 12 के नीचे है, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. मीन्स ये 4 है ना, उसको हमको डिवाइड मतलब 12 डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा. तो 4 के टेबल में 12 क्या आता है, 4 3 जा. सो 4 कट 12 कट एंड आंसर विल बी 3. सो राजी हाउ मेनी पीसेस गेट, 3 पीसेस. अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट इज द पार्ट ऑफ सुजाता. सुजाता का कितना पार्ट है, 1/3, राइट. So let's write, let's see in the notebook. See, Sujata got 1/3 of 12.
सुजाता को कितना मिला? 1/3 ऑफ 12. सो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, मतलब कि 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3. समझ में आ रहा है? नाउ अगेन 12 के 3 पार्ट्स करने हैं. तो इन टेबल ऑफ 3 वेयर विल 12 कम? 3 4s are 12, right? So 3 cut 12 cut and the answer is 4 pieces. मीन्स सुजाता थी, उसको कितने पीसेस मिले? 4 पीसेस. समझ में आया? तो राजी को कितने मिले? 3 पीसेस. एंड ये सुगादा है, उसको कितने मिले? 4 पीसेस. एंड द नेक्स्ट हु इज लास्ट? शीला. शीला को कितना मिला? देखिए 1/6. शीला को 1/6 मिले. तो दिस वे यू हैव टू राइट. शीला गॉट 1/6 ऑफ 12, राइट? टोटल तो 12 ही थे, उसमें से उसको 1/6 मिला. मतलब कि 12 मल्टीप्लाई बाय 1/6. आपको क्या करना पड़ेगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 1/6. अब 12 डिवाइड बाय 6. तो 6 का टेबल बोलना है. एंड इन टेबल ऑफ 6 वेयर 12 विल कम? 6 2s are 12. सो 6 कट एंड 12 कट दोनों आपको कट करने हैं. एंड अपसाइड यू हैव टू राइट 2. एंड हाउ मेनी पीसेस? शीला गॉट 2 पीसेस. अंडरस्टैंड? सो टोटल पीसेस कितने गए? देखिए 12 पीसेस थे, उसमें से राजी को 3 दिए, देन 4 एंड देन 2. सो टोटल 9 पीसेस. टोटल पीसेस इज इक्वल टू 3 + 4 + 2. तो कितने हो गए? 9 पीसेस. अब मंजू को कितने मिलेंगे? टोटल देखो 12 पीसेस थे चॉकलेट के, उसमें से सबको कितने दे दिए? 9 पीसेस सबको दे दिए. तो मंजू को कितने मिले? ओनली 3 पीसेस. अब मंजू से ज्यादा तो ये सुगादा को मिले, राइट? तो मंजू को सिर्फ 3 पीसेस ऑफ चॉकलेट मिली. अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू राइट इन नोटबुक विथ हेडिंग. आपको क्या करना है? हेडिंग के साथ लिखना है. अंडरस्टैंड? एंड दिस इज वी हैव कंप्लीटेड. एंड सी व्हाट पार्ट ऑफ चॉकलेट मंजू गेट. तो वो भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया. समझ में आया? Now see on page number 53 what is given? Color the hats. Means here so many hats are given, different types of hats are given, right? So first of all let's read the question. Color 1/3 of the hats red. Means ये hat में से 1/3 portion आपको find करना है. And then you have to do red color. And color 3/5 hats of blue. फिर उसका 3/5 पोर्शन में कितनी हैट आती है वो फाइंड करेंगे. देन हाउ मेनी हैट्स डिड यू कलर रेड. फिर आपको ये देखना है कि 3 अगर 1/3 रेड है तो कितनी हैट में रेड कलर आएगा. एंड व्हाट पार्ट ऑफ हैट्स आर नॉट कलर. और फिर कितना पार्ट्स है हैट का वो कलर नहीं है. अंडरस्टैंड? तो अगर हमको पोर्शन ढूंढना है कि 1/3 कितना होता है, 3/5 कितना होता है, उसके लिए हमको टोटल नंबर ऑफ हैट तो पता चलनी चाहिए ना. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. दिस इज फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and here in the middle 15. How many hats are there? 15 hats. Understand? So here it is given कि 1/3 of hats red. तो 15 टोटल है, 15 का 1/3. समझ में आ रहा है? सो वी कैन राइट. अच्छा 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है? 3 5s are 15. So 5 is the answer. 3 cut 15 cut 5. And do you know why we write 5? Means answer over here because 3 and 15. Which is bigger number? 15. तो जहाँ पे बिग नंबर होता है ना वहाँ पे उसका आंसर जाता है. सो 5. तो कोई भी 5 रेड को आपको, कोई भी 5 हैट्स आपको रेड कलर की करनी है, राइट? सो लेट्स डिसाइड कि हमने ये जो एक हैट थी उसको रेड कलर कर दिया, फिर ये हेड को रेड कलर कर दिया, फिर ये भी हेड को रेड कलर कर दिया, फिर इसको भी हमने रेड कर दिया, मतलब कि लाइन में 1 2 3 4, और इसमें भी आपने रेड कलर कर दिया. मीन्स आपको सारे में कलर भी करना है, राइट? इट इज योर होमवर्क. आपको ये सब हैट में कलर भी करना है. और उसके बाद क्या लिखा है? कलर 3/5 ऑफ हैट. अब यहाँ पे हम दूसरा वर्क करेंगे, बट ये हम नोटबुक में भी करने वाले हैं. डोंट वरी, बट ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग यू राइट नाउ. सी 15 टोटल एंड 3/5 कैसे लिखते हैं? 3/5.
So this is 3/5. Now you have to see carefully. In table of 5, where 15 will come? 5 3s are, right? 5 3s are 15 होता है. So 5 cut, 15 cut and answer 3. अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है. Both are in multiplication. 3 3s are 9. तो आपको 9 hats में कौन सा कलर करना पड़ेगा? How many? Which color? Blue. Understand? तो हमने यहाँ तक तो रेड कर लिया था. अब यहाँ पे करेंगे ब्लू. इसमें भी होगा ब्लू कलर, उसमें भी होगा ब्लू कलर. समझ में आ रहा है? तो आप काउंट भी कर सकते हो. 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 एंड 9. अच्छा, ये सब में हमने ब्लू कलर कर लिया, राइट? तो यहाँ पे कोई कैप तो बची ही नहीं. देखिए, ओनली 1 इज लेफ्ट. समझ में आया? कितनी लेफ्ट हो गई? व्हाट पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर? ओनली 1. तो 15 में से एक ही कलर नहीं किया, तो 1/15 वी कैन से. तो आपको ये टेक्स्ट बुक में समझ में आया. नाउ सी, आई हैव रिटन आंसर्स इन नोटबुक ऑल्सो. दिस वे यू हैव टू राइट इन नोटबुक. सी लाइक दिस. दिस इज बी. Color the hats portion, right? So you have to write like this. Then total number of hats is equal to 15. वो हमने अभी पहले ही देखा. टोटल कितनी hats है? 15. उसके बाद 1/3 of the hats red. 1/3 means 1/3 and 3 5s are 15. So that is also we have done in textbook right now. Okay, that's why I am speaking so fast. But let's speak again. Table of 3 you have to speak. And in table of 3 where 15 will come, 3 5s are 15. So our answer is 5. So that's why you have to write 5 on the bigger number. So 5 hats will be red. Already we have completed and we done tick mark also in that. But you have to fill red color in hat. And here 3/5 of the hats blue. So 15 multiplied by 3/5. Same here, 5 3s are 15. So answer will be 3 3s are, because 3 is over here also. Here only 1 is given. So if you do multiply, 5 1s are 5. Understand? Here 3 3s are 9 hats. So how many colored hats are there? 5 plus 9, that will be 14. And not colored. Not colored कितनी है? जैसे कि not colored hat total कितनी थी hat? 15. और कलर कितनी में किया? 5 रेड की और 9 ब्लू. तो टोटल 14 में कलर किया. So 15 minus 14 is very easy. Is only 1, right? And एक ही हैट में कलर नहीं हुआ, तो अगर उसका हमको पोर्शन लिखना है, पार्ट, तो टोटल कितनी हैट्स थी? 15. उसमें से हमने कितनी हैट में कलर नहीं किया? In 1. Understand? So you can write 1/15th part of hats are not colored. Understand? This way you have to complete all this exercise in notebook, and as per this color you have to fill the red and blue color in hat. आपको इसमें कलर फिल करना है. Understand? And complete your homework in notebook also and in textbook also. It is not like that only you do homework in notebook and don't do anything in textbook. You have to complete in both. You have 2 days, like Saturday and Sunday. I am giving you 2 days. Up to Sunday 8 PM you can send me homework. Okay, thank you.